السلام علیکم لسنرس، میں لے آئی ہوں آپ کے لیے مالا ناول کا برانڈ نیو ایپیسوڈ۔ چلیے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تاریخ تھی 11 اپریل اور شہر تھا اسلام آباد کا۔ آج کا دن اہم تھا کیونکہ آج کشمالہ کی زندگی بدلنے جا رہی تھی، لیکن اپنی صبح کا آغاز کرتے ہوئے اسے اس بات کا علم نہیں تھا، کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ وہ بیڈ روم میں آئینے کے سامنے کھڑی کانوں میں ٹاپس پہن رہی تھی جب موبائل کی مخصوص ٹون بجی۔ وہ مسکرا دی۔ یقیناً ماں کا فیملی گروپ پہ میسج آیا ہوگا، وہ بھی گڈ مارننگ کا۔ ماں ایک ہی میسج اپنے تینوں بچوں کو فیملی گروپ اور پرسنل چیٹ پہ الگ الگ بھیجتی تھی۔ اس نے ٹاپس پہن کے موبائل اٹھایا اور میسج کھولا۔ ماں نے گڈ مارننگ کے ساتھ پوچھا تھا کہ کیا وہ ویکینڈ پہ ایزا کی شادی کے لیے لاہور آئے گی؟ کل بتاؤں گی ماں، اس نے مبہم سا جواب بھیج دیا۔ یہاں ریستوراں میں اتنے کام پڑے تھے، وہ کیسے جائے گی لاہور؟ وہ کل معذرت کر لے گی۔ اپنی تیاری مکمل کر کے اس نے سر سے پیر تک آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ اس نے نیوی بلو لمبی قمیص کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ کندھے پہ ڈال رکھا تھا۔ بین گلے سے گردن میں پہنا ننھا سا ڈائمنڈ لاکٹ جھلک رہا تھا۔ پیروں میں زرد ہائی ہیل تھی۔ لمبے بھورے بال فرینچ جوڑے میں بندھے تھے۔ بیضوی چہرہ گلابی سفید سا تھا جیسے عموماً پٹھان لڑکیوں کا ہوتا ہے، اور آنکھیں سبز تھیں جن کے گرد لائنر لگا تھا جیسے سیاہ پیالے میں سبز پانی ہو۔ اس نے چہرہ دائیں بائیں گھما کے دیکھا۔ اسکن بے داغ تھی، کوئی ایک پمپل بھی نہ تھا۔ اس نے جوڑے سے 2 لٹیں نکالی اور انگلی سے رول کر کے چھوڑ دیں۔ وہ چہرے کے دونوں اطراف میں ٹھہر گئی، اپنے عکس کو دیکھ کے مسکرائی۔ وہ کام پہ جانے کے لیے تیار تھی۔ ماں ہوتی سامنے تو کہتی کہ ان کی کوئی بیٹی حسن میں ان پہ نہیں گئی۔ کہاں اپنے زمانے کی حسین ترین حورِ جہاں بیگم اور کہاں وہ ماں بینا اور کشمالہ۔ ایک تو ماں کی ججمنٹل آواز ہمیشہ ذہن کے پس منظر میں گونجتی تھی، چاہے سارا زمانہ کہے کہ ماں بینا اور مالا کشمالہ جیسا حسین کوئی نہ تھا۔ ماں نے نہیں ماننا تھا۔ وہ ماں کو یاد کر کے زیرِ لب مسکراتی ہوئی کھڑکی تک آئی۔ کھڑکی میں 3 ننھے گملے رکھے تھے، ان میں سٹیپلیا، بیگونیا اور ہیورتھیا اگے تھے۔ کشمالہ نے چہرہ ان کی سطح تک جھکا کے دیکھا۔ باقی دونوں کی ننھی گروتھ نظر آ رہی تھی، مگر ہیورتھیا کے پتے بھورے ہو رہے تھے۔ شاید روشنی اس کے لیے تیز تھی۔ اس نے پودے کو ذرا پیچھے کر دیا۔ وہ باہر جانے کے لیے لاؤنج میں آئی۔ کونے میں رکھی ورک ٹیبل سے زرد ہینڈ بیگ اور لیپ ٹاپ اٹھایا، پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ تبھی نگاہ میں کچھ کھٹکا۔ کشمالہ کے قدم زنجیر ہو گئے۔ گردن دھیرے سے دائیں جانب موڑی۔ دیوار گیئر بک شیلف میں ایک موٹی سی کتاب کی جگہ خالی تھی۔ کشمالہ کی نگاہوں نے نیچے میز تک کا سفر کیا۔ وہاں ایک ویبس ڈکشنری رکھی تھی۔ کشمالہ کی نگاہوں نے نیچے میز تک کا سفر کیا۔ وہاں ایک ویبس ڈکشنری رکھی تھی۔ یہ شیلف سے نیچے کیسے آئی؟ اس نے چونک کے ٹیرس کے دروازے کو دیکھا۔ وہ بند تھا، کھڑکیاں بھی اندر سے مقفل تھیں۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، رات کو جب میں گھر آئی تھی تب یہ کتاب اپنی جگہ پہ تھی یا نہیں، مگر کچھ یاد نہ آیا۔ اس نے سر جھٹکا۔ خیر کوئی بات نہیں، صفورہ نے کہا تھا کہ وہ نئے گارڈ کے لیے کسی کو آج بھیج رہی ہے۔ گارڈ آ جائے گا تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسے ابھی اس معاملے کی فکر نہیں کرنی تھی، اسے اپنے نئے بزنس پلان پہ فوکس کرنا تھا۔ اور اس بارے میں سوچتے ہی مالا کے لبوں پہ ایک ایکسائٹمنٹ بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بیرونی زینے اترتے ہوئے نیچے آئی۔ وہ ماموں کے گھر کی بالائی منزل پہ بطور پیئنگ گیسٹ رہتی تھی۔ ماموں، ممانی اور ان کی فیملی نیچے رہتے تھے۔ دونوں کی ملاقات ہفتوں بعد ہوا کرتی تھی۔ باہر ہوا ٹھنڈی تھی اور آسمان پہ سیاہ بادل تھے۔ آج خوب بارش برسنی تھی۔ کچن کے جالی دار دروازے سے
नाश्ते की में एक पोस्ट तक आ रही थी। वो दरवाजे पे रुकी और जाली से अंदर झाँका। नसरीन काम करती दिखाई दे रही थी। नसरीन, कल मेरे पोर्शन में कोई आया था? नहीं बाजी, कोसर तो छुट्टी पे है 2 दिन से। उसने सफाई वाली लड़की का नाम लिया। कशमाला पोर्च की तरफ बढ़ गई। अलबत्ता उसकी सोचती नज़रों ने गेट और लॉन का जायज़ा ज़रूर लिया था। कौन था जो उसकी गैर मौजूदगी में उसके पोर्शन में आता था? बल्कि नहीं, उसे अभी उस बारे में नहीं सोचना था। उसे आज ज़हीर को अपने नए बिजनेस प्लान की प्रेजेंटेशन देनी थी। उसे अपनी तवानाई बरकरार रखनी थी। ज़हीर उसका क्लास फेल होता। दोनों ने लाहौर में एक साथ ग्रेजुएट किया था। फिर ज़हीर इस्लामाबाद वापस आ गया। कशमाला के पास आइडियाज़ थे और हमेशा ही होते थे, और ज़हीर के पास सरमाया था जो कशमाला के पास नहीं था। अब्बा बचपन में ही कहीं अल्लाह को प्यारे हो गए थे। सऊदीया में जॉब करते थे। बच्चों से ताल्लुक़ न होने के बराबर था। 4 सिदा में उसकी ज़मीनें और बाग थे। अब्बा की वफ़ात के बाद ही माँ ने कभी नौकरी नहीं की, सिर्फ हिसाब किताब किए, ज़मीनों और ठेकों के रजिस्टर संभाले, लेकिन अपने तीनों बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी और आला तालीम फराहम कर दी। माही आर्किटेक्ट थी। मायद डॉक्टर बन चुका था और कशमाला को हमेशा से अपना काम करने का शौक़ था। लेकिन 5 साल पहले जब उसने अपना काम शुरू करने का सोचा तो उसके पास सरमाया नहीं था। उन दोनों माँ को भी महाबीना माही की शादी करनी थी। उन दिनों माँ को भी माबीना की शादी करनी थी। गो की माही उससे छोटी थी, लेकिन उसकी इबाद से मंगनी वर्षों से थी। इबाद उनकी सगी खाला का बेटा था। कशमाला उन हालात में माँ पे बोझ नहीं डाल सकती थी, सो उसको ज़हीर की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। यूँ 5 बरस पहले ज़हीर और उसने मिलकर एक बिज़नेस की बुनियाद रखी। ज़हीर की इन्वेस्टमेंट और माला की आइडियाज़ और मेहनत इस वक्त जो नामुमकिन लगता था, वो 5 बरस बाद शहर के मारूफ और एलिट रेस्टोरेंट में शुमार होने लगा था। ओशन रेस्टोरेंट के लिए उसने 5 बरस पहले लाहौर छोड़ दिया था। माँ उस फैसले से खुश नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी मना नहीं किया, हमेशा साथ दिया। मुईद मेडिकल पढ़ रहा था और माँ के साथ होता था। फिर माही और इबाद भी उस कॉलोनी में रहते थे। यूँ माँ को उसकी ज़रूरत न थी। 1 साल पहले इबाद की कैंडिडेट में जॉब लग गई थी। पहले वो गया, फिर 6 माह पहले माही भी कनाडा चली गई। 1 साल पहले इबाद की कनाडा में जॉब लग गई थी। पहले वो गया, फिर 6 माह पहले माही भी कनाडा चली गई। माँ के पास सिर्फ मुईद था जो सर्जरी में ट्रेनिंग कर रहा था। एक एहसास होता था कि माँ कदरे अकेली हो गई होगी। वो सोचती भी थी कि हर दूसरे वीकेंड पे लाहौर जाया करेगी, लेकिन लाहौर जाते जाते उसे 1-1.5 माह गुजर जाया करता था। और अब वो ओशन के लिए एक नए बिजनेस प्लान पे काम करने जा रही थी। अब तो शायद वो 6 माह बाद लाहौर जा सकेगी। ये नया आइडिया उसे चंद हफ्ते कबल आया था। ओशन के पीछे की जगह कुछ खाली थी जो ज़हीर की मिल्कियत थी। प्लान पे था कि वो दोनों मिलके वहाँ एक बेकरी बनाए, लेकिन वो एक मुनफरिद तर्ज की बेकरी होगी और उस दफ़ा कशमाला खुद भी इन्वेस्ट करेगी। उसने अभी ज़हीर को उस बारे में नहीं बताया था। वो एक ही दफ़ा पूरी तैयारी के साथ उसे प्रेजेंटेशन के ज़रिए बताना चाहती थी ताकि वो इनकार ना कर सके। ड्राइव करते हुए वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। दफ़ातन मोबाइल की घंटी बजने लगी। वो जानती थी उस वक्त किसकी वीडियो कॉल आ सकती थी। उसने होल्ड में लगे फ़ोन का बटन दबाया। स्क्रीन वीडियो कॉल रोशन हो गई। कैसी हो माही? हमेशा की तरह खूबसूरत माही की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। माला ने स्टीयरिंग घुमाते हुए मुस्कुरा के मोबाइल स्क्रीन को देखा। वहाँ माही नज़र आ रही थी। कनाडा में उस वक्त रात थी। माही किचन काउंटर के पीछे खड़ी जो सर के जग से जूस का गिलास में उंडेल रही थी। गोरी रंगत, गुलाबी गाल और भूरी आंखों वाली माही एक क्यूट सी पठान लड़की थी। बाल छोटे और बॉब स्टाइल में कटे थे, एक तरफ से कान के पीछे उड़से हुए और दूसरी तरफ गाल पे आगे को गिरते हुए। ये माही
का सिग्नेचर हेयर कट था जिसको वो कभी नहीं बदलती थी। तुमने ज़हीर को अपना बिजनेस प्लान दिखाना है ना आज? सोचा तुम्हें विश कर दूँ। माही जग से गिलास में जूस उंडेलते हुए कह रही थी। थैंक यू माही, और तुम ठीक हो? अपना ख्याल रखती हो ना? मुझे छोड़ो, ज़हीर का बताओ, वो मान जाएगा? माही किचन स्टूल पे बैठी, कोहनियाँ काउंटर पे रखी और जूस का गिलास कोहनियों के दरमियान रखा। फिर स्ट्रॉ होठों के बीच डाल के घूंट भरा। वो बिजनेस में है, इतने अच्छे आइडिया कोना नहीं कहेगा। तुम ना ज़हीर पे ज़्यादा ही ट्रस्ट करती हो। स्ट्रॉ हटा के उसने खफगी से कहा। आंखें शकी अंदाज में छोटी हुई। वो दिल का शेख है, मैं बता रही हूँ, वो तुम्हें इन्वेस्ट नहीं करने देगा। सारा प्रॉफिट और कंट्रोल उसे खुद चाहिए। कशमाला ड्राइव करते हुए मुस्कुरा दी। क्यों इतना शक करती हो लोगों पे? तुम जो भी हो, लेकिन माही की जजमेंट कभी गलत नहीं होती। फ़ख्र से कॉलर झटका। कशमाला मुस्कुरा दी। माही ऐसी ही थी, माँ के मुताबिक उनके सबसे ज़्यादा समझदार औलाद, और माला के मुताबिक सबसे ज़्यादा शक करने वाली। वो खुद उसके बरक्स थी, सब पे भरोसा करने वाली, लोगों को चांस देने वाली। इसलिए उसे उम्मीद थी ज़हीर मान जाएगा। माला माही कहते कहते रुकी। कशमाला अपनी बहन को इतने अच्छे से जानती थी कि उसे मालूम था कि वो अब क्या बात करने जा रही है। फिर तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, अब मैं चलती हूँ। ओशन आ गया। उसने किताब की अपनी जगह पे ना होने वाली बात गोल कर दी। कम अज़ कम उस वक्त वो माही का लेक्चर नहीं सुन सकती थी। ओशन नामी रेस्तरां नीले और सफ़ेद रंगों में इस्तेवार किया गया था। बरामदे की मेज़ लोगों से पुर थी। गुफ्तगू के हक़े नाश्तों और काफ़ी की महक। अंदर का हॉल भी तकरीबन भरा हुआ था। हर रोज़ की तरह उसके आते ही इधर उधर जाते अमले ने उसे जहाँ देखा वहीं रुक के सलाम किया। बारिश आने वाली है, मज़ीद मेहमानों को लॉन में मत बिठाओ। गुजरते हुए उसने किसी को रोका और 15 मिनट 20 मिनट तक जो भी लॉन में बैठा उसके बहुत अदब के साथ बरामदे में मौजूद होने के लिए कह दो। फिर एक वेटर को रोका, 2 उंगलियों से करीब आने की हिदायत दी। वो मुअद्दब सा चला आया। उस कटलरी को यहाँ से उठाओ। तहकुम से एक मेज़ की तरफ इशारा किया और फारूक से कहो उसको वॉश करके बफ ड्राई करके भेजे। मुझे इतनी दूर से इस पे पानी की दाग नज़र आ रही है। लहजा 2 टोक मगर नरम था। कह के वो रुकी नहीं। हाई हेलों से चलती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ऊपर आके पहले ज़हीर के ऑफिस में झाँका। वो वहाँ नहीं था। वो देर से आता था और जल्द चला जाता था। खैर है, वो उसका इंतज़ार कर लेगी। फिर वो अपने ऑफिस में आई जहाँ सायका पानी की ठंडी बोतल और उसकी कॉफ़ी रख रही थी। थैंक्स सायका। वो मुस्कुरा के अपनी सीट की तरफ आई। उसका ऑफिस छोटा सा था। ऑफिस टेबल पे खिड़की से सीधी धूप पड़ती थी। वहाँ कैक्टस का नन्हा सा सफ़ेद गमला रखा था। हेलो शेल्डन। उसने मुस्कुरा के गमले की मिट्टी तक चेहरा झुका के उसे देखा। सीधा लंबा सा कैक्टस जिसका नाम उसने शेल्डन रखा था। वो उसे गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में बड़ा लगा था। मैम, सायका ने जाते जाते कहा, कोई कैफ जमाल आपसे मिलने आया है, भेजूं? हाँ भेजो। हाँ उसे भेजो। वो अपनी पावर सीट पे बैठी और कमर पीछे टिकाई। एक सुकून सा वजूद में भर गया उसका ये आराम। वो ऑफिस गर्दन मोड़ के खिड़की को देखा जो टेबल के साथ बाएं तरफ थी। खिड़की से नीचे नज़र आता रेस्टोरेंट का लॉन, फूल पौधे, कोने में लगे घने दरख्त। ओशन उसकी वो जन्नत था जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था और अब वो उसको मज़ीद फैलाने जा रही थी। लेकिन पहले उसे सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू करना था।